Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, that is plant kingdom. This chapter, firstly we will discuss about the general overview regarding the classification. You have studied in the last chapter the 5 kingdom classification by Whittaker in 1969. In this you have studied mainly 5 kingdoms. First is Monera, Protista, Fungi, Animalia and the Plantae. In the kingdom Plantae, fungi, Monera, Protista and some blue-green algae now are excluded. This is due to the reason that fungi, Monera and some members of Protista do not have proper nucleus and membrane-bound organelles. Although they have cell wall, which is the very characteristic feature of a plant cell, but still they are of prokaryotic type due to the primitive origin, due to the primitive cell type. They are excluded from the kingdom Plantae. Although they are autotrophic, they can prepare their own food like cyanobacteria. It has some pigments like you can say photocyanin and chlorophyll through which it can prepare its food. But still, due to the prokaryotic nature, because it is actually bacteria, so it is excluded from the kingdom Plantae. Next, we will discuss about the classification of kingdom Plantae. So there are mainly 5 groups under this kingdom: algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms, and the angiosperms. So this classification was further of 3 types. First is artificial system of classification, next is natural classification, and third is phylogenetic classification. In artificial system of classification, it was done in earlier time when the scientists only considered the external character of the living organisms. They see the habit, the color, number and the shape of leaves. On this basis, they only classified the living organism into 2 types, like Plantae and the animals. It was done by Linnaeus. Next type of classification is the natural system of classification. It is little bit detailed structure of the organisms, like they considered the ultrastructure. When we see the plants with the electron microscope, we see the detailed structure of the plant cell, in which we observe the organelles, the cell wall, the cytoplasm and so on. Next is the anatomy. Anatomy is that when we dissect the plant, then we see how the cells are arranged, how the xylem and phloem is arranged in the plant. That is anatomy. Next is embryology. Embryology is the development of embryo from the zygote, how the development takes place. It is called embryology. And the last is phytochemistry. Phytochemistry is the chemicals which is produced by particular plant. See कि कौन सा प्लांट किस तरह का केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बेसिस पे दे क्लासिफाइड द वेरियस plants and the various living organism, and this type of natural classification was done by George Bentham and the Joseph Dalton Hooker. So the above classification, you can see it is also a type of natural classification. Okay, now the third type of classification is the phylogenetic classification. It is mainly based upon the evolutionary relationship. They start considering that अगर कोई organism एक same taxa में है, एक सेम टैक्सा को बिलोंग करता है, तो दे कंसिडर दैट उनके एंसेस्टर भी सबके कॉमन होंगे. सो ऑन दैट बेसिस दे स्टार्ट फाइंडिंग आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द प्लांट्स और अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ऑन दैट बेसिस दे क्लासिफाइड द वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स. There are mainly 3 types of taxonomies. First is numerical taxonomy, second is cytotaxonomy, and the third is chemotaxonomy. The numerical taxonomy, as the name indicates, in this the quantitative assessment of the similarities in character and the dissimilarities, the differences in characters is considered in order to make the objective assessment. So that what they have done is उन्होंने various characters को एक नंबर और कोड असाइन कर दिया.
अलग अलग दे कंसीडर हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स, और हर करेक्टर के लिए उन्होंने कोड और नंबर बना लिया, एंड दिस कोड एंड नंबर इज provided, it is entered as the whole data is entered to the PC, and computer then start estimating that which type of plants have the same character. Then the computer categorize them into the one class or one group, then in the next groups, and so on. In this way the grouping of plants, the grouping of various characters of plants is done. This type is known as numerical taxonomy. Next is the cytotaxonomy. Cyto means cell. In this the scientists consider the information regarding cell. They see the structure of cell, how the cell behaves according to the various you can say environmental conditions, how many number of chromosome number is there. Like if we see in human, the chromosome number is constant, that is 46. For example, in apes, that is 48. So in this way they considered the chromosome number in various plants, and thus they classified them according to their cellular structures. Next is the chemotaxonomy. Chemotaxonomy is the chemical constituents of the plants. In this they see which type of chemical is present in a particular plant, like which type of pigments is there in the plant, which type of chlorophyll is there. So on that basis they categorize the plants or the living organisms. Classification of plant kingdom. This classification is very important. It is done by Linnaeus. In this they classified the plants into two groups, into two classes, that is the cryptogams and the phanerogams. So these two classification, these two divisions is on the basis of the seed production, that which produces seed or which do not produce seed. Cryptogams are those जिनमें seed नहीं बनेगा, there is no seed formation. And in phanerogams, these are also known as spermatophytes, so they produce the seeds, they are seed producing plants. Come to the cryptogams. Cryptogams are also called as those which reproduce by spore. They get reproduced with the help of spores. They are of mainly three types: Thallophyta, Bryophyta and the Pteridophyta. See, Thallophyta is the algae which have thallus like organism. We will discuss this all the groups in detail later on. Bryophyta, those which resemble the mosses. Pteridophyta, pteron means feather. These plants look like feather. Gymnosperms, gymno means naked, and which have naked seed. That is, they do not have a seed coat. Next is the angiosperm. Angiosperms are the flowering plants. They are of two types. On the basis of the cotyledons, we have divided into two types, dicots and the monocots. Dicots are those who have two cotyledons, and the monocots are those which have one cotyledon. If we take the example of dicot, जो भी आप दालें वगैरह खाते हैं या ग्राम्स, चना, these all are dicots. Monocots में हम ले एग्जाम्पल तो मेज की, जिया मेज, that is मक्की. Now we will discuss the first group of kingdom Plantae, that is the algae. Algae is the, it is a thalloid structure. If we talk about the structure, they are thallus like. They are also known as seaweeds. And the term algae is coined by scientist C. Linnaeus, that is Carolus Linnaeus, for given the classification. The term algae is also coined by Carolus Linnaeus. Next we will discuss about the general characters, and as I have told you, they are thalloid, that is thallus like. थैलॉइड का मतलब अगर हम देखें कि ये प्लांट्स हैं, हम सोचें ये प्लांट्स हैं तो इनमें रूट स्टेम लीव्स भी होने चाहिए, बट नो, इसमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स कुछ नहीं होते. दे आर जस्ट लाइक थैलस, अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर है बिल्कुल ही. क्लोरोफिल बेरिंग, इनमें क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, which help in entrapping the sunlight. Next, they are simple autotrophic. अब क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉफिक तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है, सो दे आर इंडिपेंडेंट.
If we talk about habitat, they are ubiquitous. They are present almost everywhere. They can grow everywhere. जहाँ भी उनको moist मिलेगा, surface moist environment मिलेगा, they start growing. So they grow on moist stones, soils and wood. And largely they are aquatic. Mainly they are aquatic. If they grow in hot water spring, we will call it as thermal algae. If they will grow in ice and snow, they are called cryophytes. These terms are very important. One more question can be asked from these terms. If they grow on other plant, if the algae grow on other plant, it is called epiphytes. And if they start growing on the skin, on the surface of animal, then it is called epizoophytes. You can see they grow on sloth bear. This is the diagram of sloth bear. This is the photo of sloth bear. On the body of sloth bear, algae sometimes start growing. Okay, sometimes the algae grows in association with the fungus. So when the algae starts growing with the fungus, it is known as lichens. Okay, so the association is also called as symbiotic association or symbiosis. That means both the plants, both the organisms are benefited from each other. The algae prepares food for the fungus and the fungus absorbs water and the minerals from the surroundings. So this is called as symbiotic association. अच्छा, now we talk about size. As we know, algae हमने देखा है wherever you drink water वहाँ पे भी ग्रो कर जाती है, बड़ी कॉमन algae. या कहीं पर पानी खड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी एक लेयर जम जाती है ग्रीन या थोड़ी डार्क सी कलर की. दैट इज algae. बहुत स्मॉल होती है, बट ऐसा नहीं है कि सारी algae माइक्रोस्कोपिक होगी, है ना. बट अगर आपने चलो वैसे तो देखने में algae विजिबल होती है, बट अगर हमने डिटेल स्ट्रक्चर देखना है तो यू हैव टू सी विद द माइक्रोस्कोप. सो अगर algae यूनिसेलुलर है, वन सेल्ड है, तो उसकी एक एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास. और अगर ये कॉलोनियल algae अगर हम देखें, कॉलोनियल algae डोंट यू थिंक, आप ये डोंट थिंक कि ये एक मल्टी सेलुलर algae है. नो, कॉलोनियल algae में यूनिसेलुलर algae ही होती है, दैट इज वॉलवॉक्स. लेकिन वो एक algae जो है एक जगह पे, मतलब एक जगह पे इकट्ठी रह के कॉलोनी फॉर्म कर लेती है, जिसको हम सिनोबियम भी बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट, अगर एल्गी स्पाइरल शेप है, यू कैन सी हेयर स्पाइरोगायरा, तो ये स्पाइरल शेप होगी तो स्पाइरोगायरा इसकी एग्जांपल होगी. दिस वाज अबाउट द साइज ऑफ एल्गी. ये तो हो गई छोटी छोटी एल्गी, बड़े स्मॉल साइज है, माइक्रोस्कोप में ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं. कुछ एल्गी बहुत बड़ी भी होती हैं, जैसे कि आप लगा लो कि अप्रॉक्सीमेटली 60 to 100 मीटर लॉन्ग. अब देखो एक रेस होती है 100 मीटर की. सो दिस इज, सी हाउ लॉन्ग द एल्गी विल बी, हाउ लार्ज द एल्गी विल बी. सो द मेरीन, दे आर मोस्टली मेरीन. जो ये लार्जर मैसिव एल्गी होती हैं, दे आर मेरीन एंड दीज आर नोन एज स्केल्प्स, KELPS, स्केल्प्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे बी आस्क्ड इन 1 mark. सो द रिजर्व फूड मटेरियल एज यू नो रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी. मतलब जब हमें कुछ नई फूड मिल रहा, कोई ऐसी कंडीशंस आ गई, अनफेवरेबल कंडीशंस है, जब हमें फूड अवेलेबल नहीं, तो हमारी बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल ही हम यूज़ करते हैं. जो प्लांट्स में इसमें एल्गी में होता है स्टार्च और फैट्स की फॉर्म में, या ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी होता है. हर आगे आप टाइप्स पढ़ेंगे, हर एल्गी में अलग तरह का फूड मटेरियल होता है. ओके, नाउ हम बात करते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू की. देखो इसमें वेस्कुलर टिश्यू जो है वो बिल्कुल ही एब्सेंट होता है. उसका रीज़न क्या है? देखो एल्गी जो है वो सरफेस पे रहेगी. अगर वो पानी की सरफेस पे ही है या पानी में इमर्स्ड ही है, तो फिर, और बॉडी भी बहुत स्मॉल है, तो फिर उसको कंडक्शन की तो ज़रूरत ही नहीं है, पानी की या फूड कंडक्शन की, सारी तो वो पानी में ही है ऑलरेडी. तो फिर वेस्कुलर टिश्यू डेवलप होने का कोई मतलब ही नहीं है. तो फिर इसमें वेस्कुलर टिश्यू कोई नहीं होता. No vascular tissue is there. So next we will talk about wood. अब इसमें wood भी नहीं होता, क्योंकि जो एल्गीज हैं वो बॉइंस होती है, मतलब दे हैव कैपेसिटी, उनमें एयर ब्लैडर्स भी होते हैं कई एल्गीज में, जिसकी वजह से वो फ्लोट करती रहती है ऑन द सरफेस ऑफ you can say oceans or sea. So wood is not required here. It is not a tree ना कि जो wood होगी तो उसको स्टैंडिंग रखेगी. So wood is not required. नेक्स्ट इज थैलस. इसका थैलस बहुत फ्लेक्सिबल होता है, मतलब विद द करंट ऑफ वाटर, विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर, फ्लोइंग वाटर, इट विल मूव. इट इज क्वाइट फ्लेक्सिबल, नॉट रिजिड कि वो एक जगह पे स्टैटिक रहेगा.
ओके, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट क्लोरोफिल। इसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, जैसे हम ना पिगमेंट ए देखते हैं वो हर एल्गी में कॉमन है, फिर बी सी डी आगे आगे वेरी करता है, जैसे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्गी में, किसी में बी आएगा, सी आएगा, किसी में डी। फिर बात करते हैं हम पिगमेंट्स की। ये जो पिगमेंट्स है केराटिनॉइड्स, एंथोफिल्स, और भी पढ़ोगे आप, यूकोजैंथिन, तो ये सब पिगमेंट्स, फाइकोरिथ्रिन भी आएगा, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जब टाइप्स पढ़ेंगे। तो ये सब पिगमेंट्स किस लिए होते हैं? दे प्रोवाइड कलर टू द एल्गी। क्लोरोफिल पिगमेंट ने तो चलो वो करवानी है, फोटोसिंथेसिस करानी है, वो एल्गी में जो कलर आता है, अब क्लोरोफिल तो ग्रीन होती है, लेकिन कई सबको एल्गी थोड़ी ग्रीन होती है, जिनमें कलर आता है वो ड्यू टू दिस पिगमेंट्स होता है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल। इफ यू टॉक अबाउट लाइफ साइकिल, इट इज ऑफ हैप्लॉन्टिक टाइप, मतलब इसमें ना अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। अब देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या चीज होती है कि जो एक जनरेशन है वो दूसरी जनरेशन के साथ जो एक्सचेंज मतलब अल्टरनेट करती है। कभी कोई जनरेशन आएगी मतलब स्पोरोफिटिक आएगी, कभी गिमेटोफिटिक आएगी। अब देखो स्पोरोफिटिक और गिमेटोफिटिक जनरेशन क्या होती है? जो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन होती है ना, ये हमेशा डिप्लॉयड होगी, और जो ये गिमेटोफिटिक जनरेशन होगी वो हमेशा हैप्लॉयड होगी। आप इसको लर्न कर सकते हो। ये मैंने एक दो वर्ड्स लिखे, हैगा एंड डिस्पो। हैगा मीन्स हैप्लॉयड गेमेटोफाइट, यानी कि गेमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉयड। डिस्पो इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। इन दिस द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। अब देखो एल्गी में ना हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जिसका मतलब है कि जो मेजॉरिटी पार्ट है, मेजॉरिटी जो लाइफ साइकिल है ना, उसका वो ज्यादा फेज चलता है, कौन सा वाला? हैप्लॉयड वाला, यानी कि कौन सा? गेमेटोफिटिक फेज। इसका क्या रीजन है कि इसमें जो जाइगोट है ना, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए बनता है, सिर्फ वन सेल जाइगोट होता है और वो फटाफट ही स्पोरोफाइट में चेंज हो जाता है। फाइन, वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी लेटर ऑन। तो उसमें हम डिटेल में करेंगे कि किस तरह से वन सेल जाइगोट बनता है और थोड़े टाइम के लिए रहता है, मतलब जो डिप्लॉयड फेज है बड़ा कम होता है, इसलिए हम इसके साइकिल को हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। मेजॉरिटी पार्ट जो एल्गी है और जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन एल्गी का थैलस है ना, वो भी कौन सा होता है? वो भी हैप्लॉयड ही रहता है, वो ऑलवेज हैप्लॉयड ही रहेगा। नेक्स्ट, नाउ विल कम टू द रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से होगी। सी दिस इज द डायग्राम। देखो ये स्पाइरोगायरा है जिसमें इन्होंने बताई हुई फ्रेगमेंटेशन कैसी हो रही है। देयर आर वेरियस पार्ट्स। देखो ये फ्रेगमेंट्स आर स्टार्ट्स ब्रेकिंग एंड जो ईच फ्रेगमेंट है ना, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इनटू अ न्यू प्लांट बॉडी। सो दिस इज द टाइप ऑफ फ्रेगमेंटेशन, दिस इज द टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे एल्गी के मतलब प्लांट बॉडी में से, और वो फ्रेगमेंट्स आगे से आगे न्यू ऑर्गेनिज्म को गिव राइज करेंगे, उसको न्यू ऑर्गेनिज्म को फॉर्म करेंगे। दिस वॉज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना वेरियस स्पोर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे माइटोस्पोर्स है, म्यूस्पोर्स है। अब माइटोस्पोर्स जो होंगे वो माइटोसिस से बनेंगे। माइटोसिस हमने पढ़ा होगा, दैट इज इक्वेशनल डिवीजन। और जो मियोसिस है वो म्यूस्पोर्स हैं, वो मियोसिस से बनेंगे, दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन। सो दीज आर सम asexual spores which also give rise to the reproduction, asexual reproduction. Next is the most common spore उन्होंने बताए हैं। वैसे तो बहुत सारे स्पोर्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन ना ये जू स्पोर्स हैं। अब ये जू स्पोर क्या होते हैं, आप इन डायग्राम में देखिए। ये जू स्पोर जो है, देखो इसमें बाई फ्लैजिलेट स्ट्रक्चर है और ये मोटाइल है। देखो फ्लैजिला है, दो फ्लैजिला है, तो ऑब्वियस सी बात है मूविंग होंगे, मूव करेंगे ये, ठीक है, दे कैन मूव। और सबसे कॉमन टाइप है ये जूस्पोरेंजियम है, पेरेंट सेल है, जिसके अंदर कितने सारे देखो जूस्पोर्स बन गए हैं, और ये इस तरह से एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये जब बाहर आएंगे फेवरेबल कंडीशन इनको मिलेगा, सुटेबल एनवायरमेंट मिलेगा, एंड दे विल स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट बॉडी। सो दिस वाज अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. So in sexual reproduction, it takes place by the fusion of two gametes. Gametes, I think you have studied there are two types of gamete, male gamete and the female gamete. Male वाले क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि मेल गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, और फीमेल वाले एग, दैट इज द फीमेल गैमीट्स. अच्छा, इसमें ना एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि जो उनके गैमिटेंजिया हैं, मतलब जो सेक्स ऑर्गन्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं वो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके आसपास ना कोई जैकेट नहीं होएगी, कोई लेयर नहीं होएगी स्टेराइल सेल्स की.
मतलब देखो अगर हम हायर प्लांट्स पढ़े ना तो उसमें ना एक लेयर होती है गैमीटेंजियास के बाहर जो स्ट्राइल सेल्स की होती है। स्ट्राइल मतलब जो नॉन रिप्रोड्यूसिंग है, इन्होंने रिप्रोडक्शन नहीं करनी, बट इन्होंने जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो आगे जाके गमीट बनेंगे ना सेल्स, उनकी नरिशमेंट करनी है, उनको उनकी टेक केयर करनी है। तो लेकिन एक लेयर उनमें प्रेजेंट होती है हायर प्लांट्स में, लेकिन एल्गी में ये बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दैट दे हैव नॉन जैकेटेड गैमीटेंजिया। गैमीटेंजिया यानी कि जो सेल्स जिनमें गमीट्स प्रेजेंट हैं उनके ऊपर कोई जैकेट नहीं होती। कौन सी लेयर होती है? वो स्ट्राइल सेल की लेयर जो है एब्सेंट होती है, टोटली एब्सेंट होती है। फाइन, इट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी। ओके, नेक्स्ट फीचर इज द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो स्टेज जो है इसमें एब्सेंट होएगी, इसमें डायरेक्टली जाइगोट बनेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में सिंगल सेल जाइगोट बनेगा, वही जाइगोट आगे फिर मेन प्लांट बॉडी बना देगा, मेल फिर से दोबारा से उसको गेमिटोफाइट बना देगा, उसमें एम्ब्रियो वगैरह कुछ डेवलप नहीं होता। ओके, रिप्रोडक्शन थोड़ा सा कंटिन्यूड है, इसकी ना 3 टाइप्स होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ गेमीट ना हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट पहला है आइसोगैमस, फिर आता है एनाइसोगैमस, फिर आता है oogamous। तो अब देखो आइसोगैमस हम पहले डिस्कस करते हैं। आइसो का मतलब क्या है? सेम, यानी कि इसमें जो गैमस का मतलब गेमीट्स, अब इसमें हम गेमीट से डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो जब दोनों गेमीट्स का साइज सेम होगा तो हम कौन सा इसमें इसको हम क्या बोलेंगे? आइसोगैमस कंडीशन। देखो इन डायग्राम में ये आइसोगैमस है, देखो मेल फीमेल दोनों सेम है, ठीक है। अब डिफरेंस सिर्फ थोड़ा सा आएगा, अगर फ्लैजिला होंगे उसमें तो उसकी एग्जांपल देखो मैंने लिखी हुई है क्लेमाटोमोनास, ठीक है। और अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है, मान लो फ्लैजिला है ही नहीं, तो फिर हम उसको क्या कंसीडर, उसकी एग्जांपल क्या होगी? स्पाइरोगायरा। सो दिस वाज अबाउट द आइसोगैमस कंडीशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जो एन आइसोगैमस। अब एन आइसोगैमस के नाम से यू कैन इजीली जज कि इसमें दोनों गेमीट्स जो है डिसिमिलर साइज के होंगे, ठीक है। सी दैट दिस डायग्राम सेकंड वन एन आइसोगैमस, इसमें हेट्रोगैमी है, ठीक है, गेमीट्स डिसिमिलर साइज के हैं और फ्लैजेलास प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल भी क्या है कि कुछ स्पीशीज जो है क्लेमाटोमोनास की इस तरह की जो कंडीशन है वो शो करते हैं। थर्ड टाइप इज द आइसोगैमस। इसमें क्या होएगा? देखो थर्ड टाइप इज द oogamous। इसमें क्या होएगा? जो oogamous या ओ वर्ड इज फॉर एग, ठीक है, फीमेल जो जिसको ओवा भी कह सकते हैं। तो इसमें जो ओवा होएगा ना वो एक बड़ा साइज का होएगा, लार्जर होएगा और एक स्टैटिक होएगा, उसने मूव नहीं करना, उसमें फ्लैजेला नहीं होएंगे, बिल्कुल नॉन मटाइल होएगा। और जो दूसरा मेल पार्ट है वो एक तो छोटा होएगा और उसमें फ्लैजेला भी प्रेजेंट होएंगे। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन द 3। और ये oogamous टाइप है, इसमें एग्जांपल आप लिखेंगे वॉल्वॉक्स की और फ्यूकस की। सो दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 टाइप्स पढ़ी हमने, आइसो, एनाइसो और oogamous। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। और जी एल्गी की जो मेन हमने 3 क्लासेस दी हैं, मेन 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ द कलर। यू कैन से द पिगमेंट्स 3 है, ग्रीन, ब्राउन एंड द रेड। ग्रीन को हम बोलेंगे क्लोरोफाइसी बिकॉज क्लोरो वर्ड इज फॉर ग्रीन। ब्राउन को बोलेंगे हम फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी आर द रेड एल्गी। अब हम एक एक ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली वी विल डिस्कस द क्लोरोफाइसी दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन एल्गी। अब देखो इसमें प्लांट बॉडी जो होगी वो यूनिसेलुलर होगी, सिंगल सेल्ड होगी, कॉलोनियल भी हो सकती है, वही मैंने आपको बताया वो वॉल्वक्स वाली। ये देखो इसमें वॉल्वक्स की डायग्राम भी है, ये देखो एक एक जो वॉल्वक्स का यूनिसेलुलर एक प्लांट बॉडी है ना पूरी, वो कितनी सारी कॉलोनी में ना इकट्ठी होकर रह रही है, तो हम इसको सिनोबियम भी बोलते हैं, ठीक है। जब ये इकट्ठी एसोसिएशन में रहती है ना कॉलोनी फॉर्म में, वी कॉल इट एज सिनोबियम। ओके, कॉलोनियल है, फिलामेंटस भी हो सकती है। फिलामेंटस की आप एग्जांपल ले लो उडोगोनियम, आगे होगी डायग्राम आई शो यू। एक बिल्कुल फिलामेंट की तरह, एक धागे की तरह बिल्कुल होता है ये, तो ये इसकी एग्जांपल है उडोगोनियम। नेक्स्ट इज द डोमिनेंट पिगमेंट। अब इसमें देखो डोमिनेंट पिगमेंट कौन सा होएगा? क्लोरोफिल ए मैंने पहले भी बताया था, हर एक में आएगा, तीनों में क्लोरोफिल ए विल बी प्रेजेंट। और इसमें एक्स्ट्रा कौन सा? बी वाला, ठीक है। और ये जो इसका पिगमेंट्स है ना ये ऐसे नहीं इधर उधर डिस्पर्स्ड होंगे, ये एक पर्टिकुलर ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होंगे। देखो ये क्लेमाटोमोनास में ना ये आपको इस तरह से ना ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये सारा क्लोरोप्लास्ट है। और ये शेप कौन सी है? कप शेप। तो देखो क्लोरोप्लास्ट भी बड़ी शेप का होता है। अब ये शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में हम देखो डिस्कॉइड है, यानी कि डिस्क की तरह भी हो सकता है,
ठीक है, प्लेट की तरह भी हो सकता है, रेटिकुलेट यानी कि नेटवर्क फॉर्म में भी हो सकता है, कप शेप तो मैंने आपको दिखाई दिया ये क्लेमाइडोमोनास में, स्पाइरल भी हो सकता है, जैसे स्पायरोगायरा में हमने देखा ना स्पाइरल शेप, रिबन शेप भी हो सकता है, ठीक है, ये अलग अलग शेप्स हो सकती हैं क्लोरोप्लास्ट की। अच्छा आगे देखना स्टोरेज बॉडीज, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, स्टोरेज बॉडी। अब देखो स्टोरेज बॉडी तो हर एक के हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, तो इसकी जो स्टोरेज बॉडीज है ना वो क्लोरोप्लास्ट में ही होंगी, और इसको हम कहते हैं पायरिनॉइड्स, वेरी इंपॉर्टेंट पायरिनॉइड्स। अब ये जो पायरिनॉइड्स हैं इनमें क्या होगा, ऑब्वियसली बात है स्टोरेज बॉडी में तो फूड ही स्टोर होएगा, और फूड किस फॉर्म में होएगा, इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। फाइन, नेक्स्ट आ जाए, फिर इसकी हम सेल वॉल की बात करते हैं। सेल वॉल बहुत रिजिड है, दो लेयर्स होंगी, एक अंदर की और एक बाहर की। अंदर की जो सेल वॉल है जैसे कि आपको पता ही है प्लांट सेल वॉल कंटेन मेजरली सेलुलोज, ठीक है, तो सेलुलोज होएगा इनर साइड और बाहर वाली साइड होएगा पेक्टोस। सो दीज आर द करेक्ट फियोफाइसी, दैट इज द ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी एज द नेम इंडिकेट्स, कलर भी कौन सा होगा इनका, ब्राउन होगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे इनके जो ज्यादा मेंबर्स है ना वो मरीन है, मतलब वो ओशियंस में आपको मिलेंगे, और साइज और फॉर्म इतना ज्यादा वेरी करेगा, मतलब छोटा सा छोटा, मतलब आप माइक्रोस्कोपिक से लेके इसको इतने बड़े जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कैल्प्स बताए थे वो इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो 100 मीटर तक लॉन्ग होते हैं। अब देखो ये दे रेंजेस फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म, एक्टोकार्पस है, ये देखो बिल्कुल सिंपल है, थोड़ी सी ब्रांचिंग है इसमें, फिलामेंट्स बने हुए जस्ट, यहाँ से लेके देखो आप कैल्प्स कितने मतलब कितने बड़े बड़े बने हैं और कितने ज़्यादा ये ब्रांच्ड हैं और इतनी ज़्यादा लेंथ है, तो इतना ज़्यादा वेरिएबिलिटी इसमें, इतना रेंज आता है इन केस ऑफ साइज। ऑल राइट, नेक्स्ट अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो ए तो सब में ही था, अब पिछले में हमने पढ़ा था ग्रीन में बी क्लोरोफिल था, अब इसमें सी क्लोरोफिल आएगा। और बात करेंगे पिगमेंट, जिसकी वजह से इसका कलर है कैरोटिनॉइड्स एंड द ज़ैंथोफिल्स, ये दो पिगमेंट्स की वजह से इसका कलर जो है वो ब्राउनिश होता है। अब कलर भी थोड़ा सा वेरी करता है, ऑलिव ग्रीन से लेके ना ये थोड़ा अलग अलग शेड्स देता है ब्राउन की। ओके, अगर हम बात करें फूड की, फूड जो है वो स्टोर्ड होता है एज ए कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है लेमिनेरिन और मैनिटोल, तो इस फॉर्म में जो इसमें फूड स्टोर होता है ब्राउन एल्गीज में। नेक्स्ट वेजिटेटिव सेल की बात करें तो वेजिटेटिव सेल के ऊपर एक कोट होती है एल्जिन की, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कोट भी इसको जो ब्राउन कलर प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट इज द प्रोटोप्लास्ट। अगर हम प्रोटोप्लास्ट की बात करें, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, अगर हम सेल की सेल वॉल निकाल दें तो बाकी का जो बचता है अंदर का पार्ट, अंदर का जो मटेरियल है वो प्रोटोप्लास्ट है, तो उसमें क्या प्लास्टिड्स होंगे, ठीक है, फिर न्यूक्लियस होएगा और वैक्यूल। आपको पता है प्लांट सेल में तो मेन ये होता ही है वैक्यूल, बहुत लार्ज वैक्यूल होता है, तो लार्ज वैक्यूल विल बी प्रेजेंट होगा, जिसको हम बोलेंगे वेप्लेस टाइप। और दूसरा जो फ्लैजेला होगा ना उसके साइड्स पे ब्रश की तरह जो है वो बने होंगे, मतलब आप कह लो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रोन होते हैं, जिसको हम बोलते हैं टिंसल शेप फ्लैजेला। तो ये दो तरह के फ्लैजेला होते हैं इसमें प्रेजेंट, जिसकी जो हम बोलते हैं हेट्रोकॉन फ्लैजेलेशन, इस कंडीशन को बोला जाता है हेट्रोकॉन फ्लैजेलेशन। फिर बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें तीनों टाइप्स अगेन है, आइसो भी हो सकती है, एनाइसो भी हो सकती है, ऊगैमस भी हो सकती है। नेक्स्ट विल डिस्कस अबाउट, अब देखो इसमें पानी बहुत ज़रूरी है, गैमीट्स की फ्यूजन होगी, पानी में गैमीट्स जो है वो स्विम करेंगे, मेल गैमीट स्विम करके फीमेल तक आएगा एंड देन दे मीट एंड फॉर्म द जाइगोट, सो वाटर इज वेरी नेसेसरी इन दिस केस। फिर गैमीट्स की बात करें, गैमीट्स जो है पियर शेप होते हैं, ठीक है, पियर की तरह लगते हैं, एंड दे हैव 2 अटैच्ड फ्लैजेला, और फ्लैजेला 2 होंगे उनमें अटैच्ड होंगे। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ब्राउन एल्गी। इसकी एग्जांपल्स आप देख लें, एक्टोकार्पस, टिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सारगैसम एंड द फ्यूकस। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, हम आगे लास्ट में पढ़ेंगे, देन आई टेल यू कि ये कहाँ पे यूज होती है। डोफाइसी और वी कैन से डेड एल्गी, एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें जो पिगमेंट होगा वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होएगा। तो इसमें मेजर जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो होता है फाइको एरिथ्रीन। अब एरिथ्रोवर्ड जो है ना, आप याद रखो ये रेड कलर के लिए होते हैं, जैसे हम रेड ब्लड सेल की बात करते हैं ना, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं उनको, वो रेड कलर के लिए होता है। ये फाइको एरिथ्रीन भी ऐसे ही है, ये भी एरिथ्रीन वर्ड जो है ना वो रेड कलर के लिए।
अब इसमें क्लोरोफिल ए मैंने बताया था सभी में आएगा। अब इसमें डिफरेंट क्या आ गया, डी। अब ऐसे भी देखो याद रख सकते हो, हमने क्लोरोफाइसी करा था, उस ए सब में था, उसमें क्लोरोफाइसी में बी आ गया। फिर हमने फियोफाइसी किया, उसमें सी आ गया। फिर हमने रोडोफाइसी किया, इसमें कौन सा आ गया, डी आ गया। ये सीक्वेंस से भी आप याद रख सकते हो कि तीनों में कौन कौन से क्लोरोफिल पिगमेंट्स होंगे। अच्छा, अब ये भी देखो मोस्टली मरीन होते हैं, ज़्यादातर ओशियंस में होंगे और वार्मर एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। और एक इनमें और बड़ा खास फीचर है कि ये वेल लाइटेड एरिया में रहेंगे और ग्रेटर डेप्थ में भी रहेंगे। देखो ये एक ही टाइप ऑफ एल्गी है जो ये बिल्कुल बेड्स पे, सी के बिल्कुल डेप्थ पे ग्रो करती है, जहाँ पे कोई फोटोट्रॉफिक जो फॉर्म है वो पहुंच नहीं सकती। अब इसका भी क्या कारण है कि ये जो है ना यूवी रेज से जो मतलब सनलाइट में से जो यूवी रेज का जो स्पेक्ट्रम है ना विबग्योर, उसमें से क्या होता है कि मेनली वो दो ब्लू और ग्रीन जिनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है, वो पेनिट्रेट कर जाती है सी वाटर में से टू द बिल्कुल सी बॉटम, और वहां तक वो जो ब्लू ग्रीन लाइट आती है उसके थ्रू ही वो मतलब फोटोसिंथेसिस करके ये जो एल्गी है अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं और फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। इसी के कारण ये जो रेड एल्गी है वो इतना डीप इन द सी जो है वो ग्रो कर जाते हैं। फाइन, ओके। नेक्स्ट थैलस जो है वो इसका मल्टी सेलुलर होता है, मोस्टली दे मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। फूड की बात करें तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। जो ये फ्लोरिडियन स्टार्च है ना, ये स्ट्रक्चर में हम देखें तो अमाइलोपेक्टिन्स और ये ग्लाइकोजन है, ये भी एक स्टार्च की फॉर्म है ना। जैसे ग्लाइकोजन हमारा फूड मटेरियल, हमारा स्टोरेज मटेरियल है, हमारी बॉडी में फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है, और ये होता है हमारी मसल्स और लिवर में प्रेजेंट होता है। इसी तरह इनमें जो है जो स्टोरेज फूड है, फूड स्टोर है, वो कहाँ पे होएगा, वो किस फॉर्म में होएगा, अमाइलो होगा तो क्लोरोप्लास्ट में, इन द फॉर्म ऑफ अमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन। दिस इज द टाइप ऑफ स्टार्च। फाइन, ऑफ किंग मेन यू कैन से एल्गी। सो यहाँ पे हमारा एल्गी का ऑलमोस्ट पार्ट खत्म हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।